Hare Hare Ram Ram Hare Hare. So please maintain our culture. Please keep our culture. स्थिति आजकल रिग्रेटफुली ऐसी भी आ चुकी है। एक स्कूल में टीचर ने पूछा स्टूडेंट को कि आप बताइए ये शिव जी का बाण किसने तोड़ा था, या धनुष किसने तोड़ा था, धनुष किसने तोड़ा। कहने लगा शायद आपको मालूम है सर, आई डिड नॉट ब्रेक इट, मैंने नहीं तोड़ा। ऐसी स्थिति ना आ जाए और थोड़ा गीता रामायण का ज्ञान हमारे को बच्चों को इनकल्ट करें। Once again, I would like to thank all the youth who are accumulated here. They are the future of this world and they are future of ISKCON also. Prabhupada was very happy when he saw that so many youth were joining, and actually in the early days mostly young people, youth were joining ISKCON. But everyone of course is welcome to join ISKCON, and I would like to now end here because we are all waiting to hear from His Grace Amog Leela Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, His Grace Mohammed Prabhuji. We are thankful to you from the core of our heart for. So now we start up with the most awaited part of a session. जैसे कि प्रभु जी ने हमें बताया कि हम बहुत खुश हैं आज इतने सारे नवयुवकों को हमारे साथ देखते हुए। आज से कई वर्षों पहले ISKCON के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे जब वे 70 वर्ष के थे, ताकि अमेरिका की जो युद्ध नशे में धुत है, अपने परिवारों को छोड़कर रास्ते पे पड़े हुए हैं, उनके जीवन का उद्धार कर सके। ये हमारा सौभाग्य है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, आप प्लीज अपना कल्चर मत भूलिएगा। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे पास इतने अमेजिंग यूथ इंदौर से आके बैठे हुए हैं। तो एक बार हम अपने आप के लिए जोर से बोलेंगे हरि बोल, 2 बार हरि बोल, हरि। And we want to again thank our dear His Grace Mohammed Prabhuji for giving his most valuable time and sharing the most amazing message for our life. And now it is the time for the most awaited moment. Are we ready, everyone? Okay, so I would request His Grace Krishna Arjun Prabhu to please come up on the stage and give an introduction for His Grace Amog Leela Prabhuji. Hare Krishna. His Grace Amog Leela Prabhuji needs no introduction. एंड आप सब उनसे सुनने के लिए आए हैं। आप सब उनके काफ़ी सारे वीडियोस और उनके कोटेशंस वगैरह अपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में आपने सुना होगा, और आपको ही नहीं, बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन हैज़ हर्ड हिम। तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं। 2004 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने ISKCON ज्वाइन किए और काफ़ी यूथ के लिए काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। काफ़ी सारे सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि काफ़ी लोग भी उनसे बहुत प्रेरित हैं, और उनके प्रवचनों के द्वारा, उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा पिछले 20 साल से ISKCON से जुड़े हुए हैं। और पिछले 20 साल से काफ़ी दिल्ली में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, many people are inspired by his talks.
एंड ऑल्सो अभी इस्कॉन दिल्ली में द्वारका में एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रभु जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में. तो with these words, I'd like to welcome His Grace Amol Leela Prabhuji to please come onto the stage and share His wisdom. Hare Krishna. We would request our devotees to please felicitate our Prabhuji. Okay, Hare Krishna everyone. Hare Krishna. So thank you very very much. क्योंकि ये जगह का नाम है इंदौर, तो हमने सोचा प्रोग्राम करना चाहिए इंडोर. तो फिर हमने इसको आउटडोर नहीं किया, इसको हमने इसको इंडोर किया because it is Indore. Yes. So today the topic is East or West? India is the best. Yes, India is the best. So of course आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा इंडिया वाकई बेस्ट है. I would be sharing some of the statistics with all of you that how India is really an amazing and incredible country. In fact दुनिया का जो GDP है by 180, उसमें 32% world's GDP was being contributed by India. At 180, अभी 180 की बात है. फिर 1080 में जब आए तो 28% GDP was contributed by India. And then 1580 में it was 26% of GDP was contributed by India. And then finally जब 1900 में आए, 1900 में हमने इतनी प्रोग्रेस की that only 1% of world's GDP was being contributed by India. हालांकि इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है. इतना ज़बरदस्त कंट्री है कि जब बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आपको किसी एक ही इंस्टीट्यूट से आपके सारे एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट से, तो आप कहाँ से हायर करेंगे? He said IIT, Indian Institute of Technology. He did not say Cambridge, he did not say Stanford, he said IIT. और उससे पूछा अच्छा, no doubt IITians और Indians are quite brainy, they are quite brainy. लेकिन विशेष रूप से आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की? He said जुगाड़. Indians are expert in जुगाड़ technology. I remember once I was chatting with one of my devotees. He's from Venezuela. और हम लोग ट्रेन में जा रहे थे मायापुर की ओर. तो ट्रेन में जो पंखा था ना वो रुका हुआ था. तो मैंने ना अपनी जेब से एक कंघी निकाली because sometimes we also comb our shikha. So मैंने उस कोम से क्या किया, उस पंखे के अंदर डाल करके उसे चलाना शुरू किया और ना पंखा चल गया. And he said, "Yeah, man, what was that?" मैंने कहा, "It is known as जुगाड़ technology." So Indians are like this. We are inconceivable to the world. You know, my mother, she was in orphanage. So अक्सर international adoption के लिए वो बच्चों को गोद दिया करती थी लीगली लगे. तो वो एक बार एक डेनमार्क के माता पिता आए, मेरी माँ से मिली. मेरी माँ ने उनको इनवाइट किया था घर पे. वो घर पे आए, मेरी माँ से मिले और मेरी माँ ने उनको खिलाए गोभी के पराठे. अब डेनमार्क के व्यक्ति ने कभी भी गोभी के पराठे नहीं खाए थे. तो उनके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि पराठा चारों तरफ से सील बंद है, गोभी अंदर गई कैसे? They said, you know, we have seen the pizza, and the pizza, the topping is up there. But how come the topping got inside? Because it is all closed. So Indians have been inconceivable for the world. In fact, दुनिया में अगर किसी भी समस्या का समाधान जब नहीं निकल रहा होता, then people come to India. We remember that there was one industrial revolution in America. और ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था अमेरिका के अंदर, so it lasted for 30 years. It was very power centric kind of industrial revolution. लेकिन कुछ समय बाद ये कोलैप्स हो गया. उसके बाद आया चाइनीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दिस लास्टेड फॉर 45 years. 45 years. पर उसके बाद ये भी कोलैप्स हो गया. Now entire market industry was thinking कि ना अब नया मॉडल भला कहाँ से आएगा, नया मॉडल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा. When people do not have answers to their questions, they come to India. And finally, a team came to India
to search for another model. और यहाँ पर आकर के उनको एक बड़ा अजीबोगरीब मॉडल मिला. ये मॉडल था गुरु और शिष्य का, where they saw Guru as employer and disciple as employee. और गुरु नाम का एम्प्लॉय को कुछ पैसे वैसे भी नहीं देता, नो तनख्वाह, नो ईयरली इंक्रीमेंट, नो पर्क्स, नथिंग. बट दिस पर्सन नोन एज डिसाइपल, द एम्प्लॉय उनकी भाषा में, पूरा बिका हुआ है. And then they were thinking, what really drives the whole relationship? And then they could see inspiration. It is inspiration. अगर प्रेरणा चाहिए तो कहाँ आएंगे हम? इंडिया में आएंगे, because इंडिया में है inspiration. I met one boy. Now he is an English boy. पर वो ना हिंदी ऐसी बोलता था जैसे कोई हिंदुस्तानी बोले, ऐसी हिंदी बोलता था. आप कैसे हैं? अरे आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा. ये अंग्रेज कैसा अंग्रेज है? अंग्रेज कैसे बोलेगा? हमको बहुत अच्छी लगती है इंडिया, ये बहुत ब्राइट कंट्री है. हम तो सबको नमस्ते कहते हैं, नमस्ते. ये विलायती आदमी है, अंग्रेजी बोल रहा है. लेकिन कोई ऐसी हिंदी बोले, आप कैसे हैं? अरे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. अरे कृष्णा, अरे सारी डेंटिंग पेंटिंग तेरे विदेशी हो रखी है, अंदर से ऐसी हिंदी. तो उससे हमने पूछा कि यार तेरी ऐसी हिंदी कैसे भाई, तू तो विलायती आदमी है. तो उसने बताया कि ना एक्चुअली बहुत ही अमीर करोड़पति आदमी का बेटा था वो. और उसने पिताजी से बोला, पिताजी आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन ना मुझे माँ का प्यार नहीं मिला. तो माँ का प्यार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो पिताजी ने बोला, देख बेटा, ये जो रिश्तों की जो नसाकत है, रिश्तों की खूबसूरती है, मधुरता है, स्वीटनेस है, दैट इज अवेलेबल इन इंडिया. सो यू शुड गो टू इंडिया. तो इंडिया आया वो. इंडिया में यहाँ पर आकर के उसने काफ़ी रिसर्च की, और रिसर्च करके उसने पता लगाया कि हाँ, इंडिया में बंगाली मदर्स एंड पंजाबी मदर्स, वैसे सारी मदर्स आर ऑसम, पर ये कुछ थोड़ी ज़्यादा ममता वाली होती है. सो ही प्रपोज्ड वन बंगाली मदर कि अगर मैं हर महीने आपको 1 लाख रुपए दूं, क्या मुझको एक बच्चे की तरह पालोगे आपके घर में? सिर्फ 2 साल के लिए. फैमिली ने बोला 2 साल क्या, तू जिंदगी भर रहे बेटा. तो बल्कि औरों को लेकर गया, नो प्रॉब्लम. एंड बीइंग इन द फैमिली ही गॉट सच लव एंड अफेक्शन, such love and affection that it has been now 7 years he is still in India getting the love of mother. क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों की sweetness is where it is in India. In terms of money, वैसे माना जाता है कि India has been a poor country, but India has not been a poor country. अंग्रेजों के समय में 1.5 billion British pounds were being sent every year from India to Britain. Every year. Every year. In fact, पूरी दुनिया में जितना भी डायमंड कट होता है, out of 10 diamonds, 9 diamonds are cut in India. और पूरी दुनिया में ज्वेलरी का जो बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है $26 बिलियन का. कितना? $26 बिलियन पूरी दुनिया में. और $26 बिलियन में से $17 बिलियन are owned by Gujaratis. $17 billion is there with Gujaratis. My God. In fact, USA के अंदर जितने भी होटल्स हैं, उनमें 35% are owned by Gujaratis. That's when Gujarat they say, behind every motel there is Patel. Patel से मुझे याद आया. Actually once there was one class. It was in Britain. और UK क्लास थी, तो वहाँ पर टीचर पूछा स्टूडेंट से, Who is the greatest person in entire creation? तो किसने कुछ जवाब दिया? Wrong. तुम बताओ. फिर उसने जो बताया कि no such and such person. Wrong. So there was one boy, उसका नाम था Jignesh. कहते हैं Jignesh, you tell, who is the greatest personality in entire creation? He said Jesus Christ. तो टीचर ने क्या किया? उसको $1000 दिए, 1000 पाउंड दिए. ये लो बेटा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया. तो
तो फिर टीचर बोली, लेकिन बेटा यू आर जिग्नेश, हाउ कम यू सेड दैट जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी? सो जिग्नेश ने बोला, मैम वैसे तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, बट फॉर जिग्नेश बिजनेस इज बिजनेस. But yes, we see that most brainy people in terms of businesses also is there in India. In fact, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, in terms of education, भारत के अंदर 1500 लैंग्वेजेस बोली जाती है. कितनी? 1500 लैंग्वेजेस, and we have 120 scripts available. चेन्नई की लाइब्रेरी के अंदर there is one 45,000 पेज की एक book which is just index telling how many scripts are there in India. ये इंडेक्स है, not number of scripts. 45,000 पेज की किताब है which is only index of the scripts in India, जिनमें से आज सिर्फ 120 अवेलेबल है. वाओ. In fact, Bodhayan was the one who taught geometry. He was the one who took out the value of pi. Pi की वैल्यू कितनी होती है? Yes, pi की वैल्यू 22/7, 3.141 was given by Bodhayan. Under root 2 was given by Bodhayan. Even Pythagoras theorem did not come from Pythagoras. It also came from Bodhayan. So much of education has been there. And in India में when there was this Abrahamic attacks, so नालंदा की जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा और तक्षशिला की, उसकी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी, जब उसको जलाया गया था, वो 3 महीने तक जली थी वो. That means so many books of knowledge were there in India that it took 3 months to burn all the books. लाइब्रेरी जलते 3 महीने बीत गए. Wow, that was the knowledge base of India. तो पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बहुत स्कॉलरली है, he would come to India so that he can get the best of knowledge. अभी जैसे आजकल मूवी चल रही है कश्मीर फाइल्स. Kashmir Files beautifully describes that how Kashmir was the headquarter of knowledge. जो लोग बनारस से सीखने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, they would go to Kashmir for spiritual knowledge. So India was the hub of spiritual knowledge, वो चाहे material knowledge हो या spiritual knowledge हो. Have you heard of Shushruth? Shushruth was the founder of surgery. Even cosmetic surgery was founded in India. इसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा. That was also founded in India. In fact, before Britishers came to India, India had 34,000 ships, 1.2 million ton की capacity. 1.2 million ton. Huge ships. कितने? 34,000. But when Britishers came to India, they took all the ships away. And by the time they conquered India, we had only 1,686 ships out of 34,000 ships. That was India. In fact, when Britishers came to India, उन्होंने सोचा कि ना हम कहाँ ब्रिटेन से मंगाते हैं इंजन वगैरह, इतने इंजन मंगाएंगे हम, यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं. सिर्फ 18 साल के अंदर इंडियंस ने इंजन बनाने में इतनी महारत हासिल कर ली थी that they were now innovating in engine. इनोवेशन, इतना बढ़िया इनोवेशन कि लोगों ने बोला हमें इंडियन इंजन्स पसंद हैं, ब्रिटेन की इंजन्स अपने पास रखो. तो उनको यहाँ की फैक्ट्री बंद करनी पड़ी थी. ये बंद करो, नहीं तो इंडियंस क्या करेंगे, पूरी दुनिया को इंप्रेस कर लेंगे, हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी. दैट वाज द इंटेलिजेंसिया व्हिच इंडियंस हैड इन टर्म्स ऑफ मशीनरी. सुपर. एंड दैट वाज द स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया ऑलवेज वर्क ऑन सेल्फ. Actually, आज मॉडर्न एजुकेशन इसकी कमी क्या है? Today all we learn through education is so that I can be satisfied. पर self satisfaction बिना self को जाने आ ही नहीं सकती. First I should know self and then I can go for self satisfaction. पर आज self के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है. Like once पंडित जवाहरलाल नेहरू, he went to one mental asylum, पागल खाने में गए.
तो डॉक्टर से पूछा इनमें से सबसे कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो डॉक्टर ने बोला वो पीछे है ना कोने बैठा हो, वो है तो वो भी सकेला है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पास पहुंचे और उसके पास पहुंच के बोले ये आपके आसपास लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? तो उसने बोला यार एक राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखेगा उसको कैसा लगेगा? तो ठीक है, क्लियर हो गया भाई कौन केस है। तो उसने पूछा, पंडित जवाहरलाल ने पूछा अच्छा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? तो उसने बोला मैं क्यों बताऊं, तू बता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वेल माय नेम इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पागल इतना हंसा हंस हंस के लोटपोट हो गया वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कोई जोक क्रैक नहीं किया है, मैंने आपको अपना नाम बताया है। तो पागल बोला पता है 6 महीने पहले मैं जब आया था ना, मैं भी ये बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ और इन लोगों ने मेरे को यहाँ डाल दिया, अब तेरी बारी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? पागल। क्या बोलते हैं उसको? पागल है यार। अच्छा आपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी राइट? अगर आप पहली लाइन में गड़बड़ी कर दें और बाकी लाइन में सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब टकाटक लगाएं, आपका आंसर सही आता है गलत आता है? गलत आता है, क्योंकि पहली लाइन में गड़बड़ी कर दी भाई। इसी तरह से अगर अपनी आइडेंटिटी की नॉलेज में अगर हमने गड़बड़ी कर दी तो उसके बाद हम कितनी टेक्नोलॉजी ये वो फला डिमका ये सब कुछ करें, जो निकलने वाला है फल निराशाएं मिलने वाली है। और ये देखते हैं कि आज इंडिया के अंदर ऐसा हो भी रहा। इंडिया के अंदर जैसे इंडिया आई एम टेलिंग यू, इन इंडिया एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंटल इलनेस केसेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड्स would be in a country, जानते कौन सा कंट्री? मैं आपको हिंट देता हूं, ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा हाँ जी। India would be world's #1 country in having maximum number of mental illness cases and suicide cases among the youths. We would be #1. तालियां हो जाए हमारे लिए, तालियां नहीं बजानी है। ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है कि सोचिए हम डिप्रेशन के केस में, सुसाइड केस में #1 हो जाएंगे। ताली बजाने की बात बताओ, अब बहुत आज्ञाकारी हो आप लोग यार, टू आज्ञाकारी, माय गुडनेस। सो दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर इन फैक्ट पूरी दुनिया में 300 million people are suffering because of depression, and in every 40 seconds people commit suicide, in every 40 seconds। यानी अगर 40 मिनट्स की टॉक होती है इसमें इस वक्त कितने ही लोग सुसाइड कर चुके होंगे बाय दिस टाइम। अच्छा लोग सुसाइड वाला क्यों करते हैं? पीपल कमिट सुसाइड टू बी हैप्पी, टू बी। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला था, उसने मुझे बोला प्रभु जी मन करता है सुसाइड कर लूं। मैंने कहा तू बोल रहा है सुसाइड करने को, पता है सुसाइड करते वक्त कितना दर्द होता है, मरते वक्त कितना दर्द होता है? उसने बोला कितना दर्द होता है बताइए। मैंने कहा अगर 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, कितने? 40,000 बिच्छू एक साथ काटे उतना दर्द होता है। तो उसने बोला प्रभु जी अभी ना मेरे को 80,000 बिच्छू काट रहे हैं, अगर मर जाऊंगा ना 40,000 पे आ जाऊंगा, मर जाता हूं। But that's the case in India, that every 40 seconds a person commits suicide. Today I was hearing Mahaman Prabhuji, he said in Indore only, every day 2 people commit suicide. 2 लोग सोचते हैं इंदौर दिन आज के दिन सोचा होगा बस अब जी के क्या करेंगे, जिंदगी में ना कोई रंग है ना कोई ढंग है, जिंदगी हमारी कटी पतंग है, तो हम क्या करें? Let me commit suicide, and then people commit suicide. That's the condition in India which is happening. और बहुत दुख की बात है, reason being India has been the land of spirituality. Every country has got their speciality. Like Switzerland is famous for watches, Swiss watches. France is famous for perfumes. America is famous for baseball.
जापान एंड चाइना फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, ये उनकी स्पेशलिटी है। हमारी स्पेशलिटी क्या है? Why people come to India? To learn technology, to learn fashion. लोग क्या सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर इंडिया में? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, और वो है इंडिया। In fact, one of our spiritual leaders, he was sharing, in 1960s and 70s, विदेश से बहुत लोग आया करते थे इंडिया, especially to ऋषिकेश and Haridwar to learn spirituality. लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं, they are only 10% of what people used to come earlier. Only 10% are coming. Do you know why? Because अंग्रेजों ने भी देख लिया, अरे भाई इंडियंस जो है ना, इनकी टाइम फिश हो चुकी है। In spirituality, they have given up their culture of spirituality. That's why 90% of Americans and Europeans are no more coming to India to learn spirituality, which is quite sad. Now people go to Rishikesh, why? For bungee jumping, for river rafting, और otherwise बियर की बोतलें लेकर के जाते हैं। ठंडी कैसे करें? कोई है ठंडी चीज करने वाली जगह? गंगा, और गंगा मैया में बियर की बोतलें रखते हैं, या थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, पीते हैं उसके बाद फिर, और फिर वहां से ठंडी ठंडी बियर निकालते हैं। जय हर हर गंगे। वाह, that is what India is becoming nowadays. Although India has been spiritual inherently, अगर हमें को लॉजिकली भी डिफीट कर देना, अगर लॉजिकली भी that there is no God, even then हम बोलेंगे देखो जी कोई तो है, भले ही हम आपको कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन जी कोई तो है, जी कोई तो है। आपको पता है इंडिया में कितने एथियस्ट हैं? There are only 0.24% people atheist. 0.24% लोग भारत में नास्तिक हैं, सिर्फ 0.24%. In comparison to China, where 67.78% people are atheist. 67%. That means 2/3 लोग नास्तिक हैं चाइना के अंदर। और हिमालय के इस तरफ अगर आते हैं, immediately there is cultural change. 0.24% people are atheist in India. और नास्तिक भी कैसे होते हैं? थोड़ा नाराज होते हैं भगवान से, और कुछ नहीं मानता मैं भगवान को। क्यों नहीं मानते आप? अरे मेरी बीवी भाग गई उसके साथ है, मेरे बच्चे मेरा खाना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री फ्लॉप हो गई है, कहाँ है भगवान? नहीं मानता है भगवान। तो बेसिकली लोग गुस्सा है। ये जो 0.24% वाले भी हैं, ये बेसिकली या तो गुस्सा है भगवान से, ऐसा, that's it. लेकिन जब इनको हल्की सी स्पिरिचुअलिटी एक्सपोज होती है, then immediately they come to their real colors. एक समय IIM में था, IIM अहमदाबाद में, so मेरा टॉपिक था Does God really exist? तो मैंने कहा ओके, who believes in existence of God? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मुझको मेरी अंग्रेजी पे डाउट हो गया। मैंने कहा भाई अमोघ लीलादास, बेटे तेरी अंग्रेजी हिल चुकी लगता है। मैंने कहा ओके, who does not believe in existence of God? 80% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा अरे अंग्रेजी तो ठीक है यानी मेरी, ये भाई जनता थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन मैंने देखा 20% ने तो किसी में हाथ नहीं खड़ा किया, ना इसमें ना उसमें। मैं 20% से पूछा, मैंने कहा अच्छा ये 20% लोग, आप लोग जैसे we are agnostics, we are least bothered whether he exists or not, we are least bothered, agnostics. Okay, now ये 55 लोगों का बैच है, 80% इसमें नास्तिक है, 20% एग्नोस्टिक हैं, और टॉपिक क्या है? Does God really exist? मैंने कहा भाई अमोघ लीलादास, आज तो बल्ले बल्ले। तो उसके बाद जो सेशन था इतना चिंगारी भरा था, ओ माय गॉड, सच अ हैपनिंग सेशन, कि मतलब मेरी पावर पॉइंट स्लाइड तो गई, आई कुड नॉट स्पीक फ्रॉम दैट। सो दे वर शूटिंग क्वेश्चंस, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट, हाउ डेयर यू से दिस, हाउ डेयर यू से दिस। 1.25 घंटे का पीरियड था ये, इट वेंट लाइक दिस ओनली, बट बाय कृष्णा's mercy, by the mercy of great wonderful devotees like we have Mahamon Prabhu ji here, तो इन सबसे हमने थोड़ा सुना हुआ है, so I could answer their questions. लेकिन उस 1.25 घंटे के पीरियड के बाद they became so cultured
so warm, so respectful, that after the session they would come and say, sir, I have got a question, can I ask a question? और इससे पहले कहा था, how dare you say that? How can you say this? पर जैसे ही थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो हल्की सी धूल जमी हुई थी, जब हल्की सी हटी, उसका फर्क ये पड़ा that they were doing this. Sir, I have got a question, sir. Can I ask a question, sir? This was their attitude. Change. And this happens in India actually. ये इंडिया की खास बात है. Even तो देखो externally we may do that कि हम बाल ब्लीच करा लें, उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोल लें, फटी हुई जीन्स पहन लें और यो कर लें, लेकिन अंदर से तो हम देसी माल हैं. देखो हम अंदर से देसी माल हैं. मैं लड़कियों को देखा है जिसने थोड़े अंग्रेज जैसे, so that they look blonde, लेकिन जब मुंह खोलती हैं, नमस्ते आप कैसे हो, अरे. तो इसीलिए हम अपने कल्चर को छोड़ने से, भले बाहर से हम डेंटिंग पेंटिंग कुछ अपनी करा लें, बट वी कैनॉट रियली गिव अप आवर कल्चर. इसलिए आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, इंडिया के अंदर सिर्फ 15,000 पुलिस स्टेशन है. कितने? 15,000 पुलिस स्टेशन है. यूएसए के अंदर 17,000 पुलिस स्टेशन है, जबकि हमारी जनसंख्या यूएसए से 4 गुना ज्यादा है. इवन देन हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन सिर्फ 15,000 है, उनके यहाँ 17,000, 2,000 और ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी है 1/4. We are 4 times than theirs, even then. Why? Because people here are so good. मेरे साथ ऐसा हुआ था that once somehow जो मेरा कैब वाला था, ओला उबर वाला, उसने ना थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर दी रेड लाइट पे. तो पुलिस वाला आ गया, अरे क्रॉस कैसे किया है? कहता है वो भाई गलती से हो गई यार वो. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा गलती होगी सर माफ हो जाएगी. तो महाराज जी, मैंने कहा हाँ वो गलती से थोड़ा सा आगे निकल गया सर, माफ करिए सर. क्या सर, एक शर्त पे सर, अगर आप हाथ सर पे रख दोगे तो. मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, हरे कृष्णा. इंडिया इज सच एन अमेजिंग कंट्री कि आप ब्लेसिंग्स में, मतलब किसी को ब्राइब देनी हो, यू कैन गिव ब्लेसिंग्स एंड ब्राइब. वाओ, दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया. पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो सकता दैट इन ब्राइब यू कैन गिव ब्लेसिंग्स. कहते हैं चलान मत काट, हरे कृष्णा. कहता हो गया बाबा जी, जा यार जा. That is India. My God, such a beautiful country, such a beautiful country. When I was in USA, when I was working as a software engineer, तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गया था USA. तो मुझे वहाँ कई लोगों ने बोला, you are going to USA man, you know you should have fun. मैंने कहा यार क्या have fun, बस ये चौड़ी सड़कें हैं, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, अच्छा है. नहीं, you should go to New York. न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देखो भाई, व्हाट अ नाइट लाइफ मैन. मैंने चलो यार, चलो न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देखते हैं. सो आई वेंट टू न्यूयॉर्क एंड सॉ द नाइट लाइफ. तो वहाँ बहुत चमकदार, रोशनीदार, अच्छे अच्छे बिल बोर्ड्स हैं, कलरफुल LEDs, दिस दैट, ओके नाइस. तो मैंने उस व्यक्ति को बोला, मैंने कहा देखी मैंने यार, दैट वाज वेरी ड्राई. चमक थी लेकिन बहुत सूखापन था. अरे नहीं, न्यूयॉर्क से ज़्यादा है लास वेगास. Go to Las Vegas, the Sin City. मैंने चलो यार Sin City ट्राई करते हैं. So then I went to Las Vegas. वहाँ थोड़ी बल्ब ज़्यादा लगे हुए थे, थोड़ी LED ज़्यादा लगी हुई थी. That's it. But it was same dry place. तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार it is also very dry. तभी वहाँ पर लास वेगास में हमारे इस्कॉन का लास वेगास का मंदिर है. Few devotees they were singing and dancing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मैं कहा यार ये जूस तो यहाँ पर है भाई. And then I joined ISKCON Las Vegas devotees singing and dancing in the streets of Las Vegas. That was really very juicy. Otherwise it is so dry. But the Vedic culture of singing and dancing, from where does it come? India. Yes, India. It's such an amazing place कि हमारे कल्चर से एक बार लोग जो जुड़ जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं पाते. ऐसा
So that's why whether we see the branch of education, medicines, or mathematics, or in terms of businesses, well, India is such an amazing place. But somehow because of this attack of secularism, being secular के नाम पर हमारे इंडियन कल्चर का, वैदिक कल्चर का इतना हनन हुआ है. Oh my God. That the only country where a person is not feeling proud of the culture of spirituality is India. Hats off to media. Hats off to this kind of propaganda being done by the media, which has brainwashed Indians to such an extent that we don't feel proud of our own culture. Like constructing a temple. हम जब मंदिर बनाते हैं अगर, तो लोग डाउट करते हैं क्या आप मंदिर बना रहे हो, कि आप इस जगह कुछ और बना लेते हैं आप. You'd be astonished to know from 2001 till 2007, Christians made 10,000 churches just in South India. And it was not a challenge, it was an opportunity for them. They feel proud in making churches. In fact, Olympics में, जब China में Olympics हुए थे, 5 crore Bibles were distributed free of cost. So we see that in other religions, people contribute so much for spirituality, for their culture, for their religion. So we should also solidly and with great determination and enthusiasm should contribute to our own culture. Which culture? Our Vedic culture, our Indian culture. आपको जान के बड़ी खुशी होगी that ISKCON alone has distributed 60 crore Bhagavad Gitas in past 70 years. In every 35 seconds, ISKCON distributes one Bhagavad Gita. In every 35 seconds. In every 7 seconds, we distribute one spiritual book. And every 35 seconds, we distribute a Bhagavad Gita. Bringing back the spiritual culture. और ऐसे आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, if people are looking for leadership has to come from India. I met one Vedic astrologer. He said why India has to be the leader, and leaders would come from India, because even astrologically, Guru, actually हर एक planet के ना अपना एक influence का स्थान है. Like Rahu Ketu is more on Europe, but Guru की दशा सबसे अधिक fall करती है on India. So अगर हम spiritual education की ओर नहीं जाएंगे, material education की ओर जाएंगे. But yes, education would always be strong in India. Even when Indians go to USA, in USA में जितने भी Indians हैं, उनमें से 70% are graduate. 70%. In comparison to the overall USA, जिसमें 28% लोग graduate हैं. 70% Indians are graduate. In post-graduation, 40% Indians are even post-graduate. In comparison to the local percentage, which is only 8%. Only 8%. In terms of education, we are fabulous. When I was in USA, so I asked my boss ka boss. I said, why is it that jobs, they come to India? जबकि मैं देखता हूँ यहाँ भी बहुत सारे youths हैं अमेरिका के अंदर, but we see that jobs are coming to India. And my boss ka boss, he said, actually, the best manpower in the world is in India. They are hardworking, they are intelligent, they are amazing in communication. Communication में देखिए Indians का क्या है? Indians can change their accent also. थोड़ी voice and accent training देते हैं ना? They can change their accent. Australian accent बोल देंगे, American accent बोल देंगे. Okay, all right, yeah. So which part of the computer system is not working? वो भी कर लेते हैं. मतलब मुंह का accent कैसा भी कर लेते हैं. ये चीज़ Chinese नहीं कर पाते. Chinese लोग बहुत hard working हैं, लेकिन अंग्रेजी वो Chinese style में बोलते हैं. So which part of your computer is not working? China. लेकिन Indians China वाली अंग्रेजी बोल लेता है, वो American वाली अंग्रेजी बोल लेता है, और हमारी Indian वाली अंग्रेजी तो पूरे ठोक के बोलता है. Wow, that is India. So he said that Indians are hardworking, Indians are intelligent, and Indians are very good in communication.
written communication, verbal communication, Indians are fabulous, and they take 1/8 of the salary. जिस काम के लिए हम $1000 देते हैं, हाँ USA के अंदर हम इंडिया को देते हैं only $120. That means 1/8 of the salary which we give, and we get such wonderful result. We get people like you. मैंने एक सिंपल सी काम चीज़ की थी उसमें, in Excel there is conditional formatting कि अगर आप yes लिखे तो green होता है और no लिखे तो red होता है. ये कोई भी जानता है, जो Excel जानता है वो कहेगा ये क्या है बच्चों वाली. उसने जब देखा ना yes किया तो green हो गया, no लिखा तो red हो गया. Hey, it's magic. I said it's not magic, sir. It's just a simple thing. Oh, it is that simple. मुझे याद है मैंने my first job was in troubleshooting routers and internet issues. So मैंने उसको थोड़ा ठीक कराया. मैंने कहा okay now press any key. बंदा कहता but where is the any key? मैं कहा sir any key means any of the key. ऐसे लोग हैं भाई साहब. My God. One of my friend he was doing troubleshooting and he said okay. तो उसने बोला my keyboard is not working. My keyboard is not working. So मेरा जो साथी था उसने बोला okay, is your keyboard connected to the CPU? He said what is CPU? CPU नहीं पता यार, मतलब there is one box, black color box which has this and that and ports. Oh, that's tower. उसको tower बोलता है वो. Okay, is it connected or not? How do I know that my keyboard is connected or not? So मेरे दोस्त ने बोला okay, take your keyboard in your hands. Now go 5 steps backward. Are you able to do that? Yes. तो मेरे दोस्त ने बोला at least it is not connected. So Indians, they are hardworking, they are intelligent, and they are very good in communication. And one more thing he shared, that 70% of the American youth is drug addict. 70%. And once somebody becomes drug addict, उसकी वजह से क्या होता है? The person becomes like a zombie. You know zombie? He becomes like a zombie. ऐसा आदमी से काम करा सकते हैं हम लोग? No. You cannot do that. But now, even Indian youth is also becoming drug addict. Indian youth. आपको पता है कितनी किलो हेरोइन नहीं, हेरोइन इंडिया में आती है फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान? एनी गेस कितने किलो हेरोइन यहाँ पर आती होगी ताकि आप हीरो ना रहें उस हेरोइन की वजह से? एनी गेस? एनी गेस? 1 million किलोग्राम, 10 लाख किलो कम से कम. डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई और बढ़ती है. 1 million kilogram of heroin with more variants, it comes to India, and the number is increasing because now our Indian youth, come on man, let's explore. देखते हैं यार, कुछ नहीं होगा यार, मर्द बन. So that hippie culture which happened due to Vietnam War in USA is now coming to India. और जिस तरह से उस वक्त hippies को happies बनाया था chanting Hare Krishna ने, so seems like the history is going to repeat itself. Again the hippies are going to become happies by chanting Hare Krishna. There was one boy, he was sharing how he became a devotee. This is a story in Amsterdam. यूरोप में जगह है एम्स्टर्डम. उसने एक वीडियो गेम डाउनलोड की थी और उस वीडियो गेम में था जब भी वो गोली मारेगा ना टुफ टुफ तो वो जोर से बोलता था गौरंगा गौरंगा टुफ टुफ गौरंगा टुफ टुफ गौरंगा. अभी गेम खेला करता था तो गोली चलाया करता टुफ टुफ गौरंगा टुफ 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 गौरंगा. गौरंगा इस चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा इज नेम. हुआ क्या, 1 महीने बाद ना उसकी मीट खाने की आदत निकल गई. तो उसके दोस्त बोले खा ले यार, टंगड़ी लेके आए तेरे लिए, खा ले. ऐसा पता नहीं यार, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है यार. अच्छा पागल हो गया तू. 2 महीने बाद ना उसने गर्लफ्रेंड को बोला हम ऐसे कब तक
लफंडरबंदी करेंगे, शादी कर लेते हैं। कहते क्या लफंडरबाजी कंटिन्यू करते हैं? कहते नहीं यार, बहुत हो गई लफंडरबंदी, हम शादी कर लेते हैं। पागल हो गया, 1 महीने पहले इसने मीट भी छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दी इसने, और अपनी गर्लफ्रेंड को बोला है शादी कर लेते हैं। पागल हो गया। एंड हुआ क्या, देन डिवोटीज वर डूइंग कीर्तन, तो उसे बोल रहा है गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। उसे बोले एक्सक्यूज मी, ये मेरी वीडियो गेम वाला नाम तुम लोग क्यों बोल रहे हो? इन माय वीडियो गेम देयर इज टुफ टुफ गौरंगा, टुफ 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 गौरंगा। उसे बोला अरे तेरा कोई वीडियो गेम का नहीं है, ये गौरंगा भगवान का नाम है, गौर अंगा, जिनकी गोल्डन अंग है, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। He said what? That's the name of God. Yes. कहता ओ तब भी मैं कहूँ ये मेरी सारी ये गलत आदतें, मेरे ड्रग्स, ये मीट, मेरी दारू शारू, ये कौन निकाल रहा है? टुफ टुफ गौरंगा, टुफ 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 गौरंगा। तो भगवान का नाम, that's really so sweet and so purifying, so purifying. ऐसे हमारे एक डिवोटी was sharing how he became a devotee. उनकी गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड का कुत्ता था, और कुत्ते का नाम रखा था उन्होंने कृष्ण मूर्ति। What a unique name. कुत्ते का नाम रखा कृष्ण मूर्ति। अब कुत्ता कहीं खो गया, so she was calling out कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, where are you? I love you darling, कृष्ण मूर्ति। अब ये बड़ा लंबा नाम है, कृष्ण मूर्ति, नहीं थोड़ा छोटा करके बोलते हैं कृष्णा, ओ भाई कृष्णा where are you? तो उसका बॉयफ्रेंड ने बोला अरे मैं तेरे कुत्ते को ढूंढता हूँ, तो चिंता मत कर। तो उससे पूछा what's the name? कहती yeah, you know his name is कृष्ण मूर्ति, but you can also call कृष्णा, like that. तो इसने पुकारना शुरू कर दिया कृष्ण मूर्ति, where are you? I love you कृष्ण मूर्ति, where are you? तो कुछ समय इसने फिर शॉर्ट फॉर्म कर दिया इसने कृष्णा, ओ कृष्णा where are you कृष्णा, कृष्णा I love you, ओ कृष्णा, कृष्णा। अब हमारे डिवोटी जो थे उन्होंने देखा बंदा यार यूरोप की सड़कों पे पुकार रहा है कृष्णा कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, वेयर आर यू कृष्णा, ओ कृष्णा प्लीज कम कृष्णा। ऐसी भक्ति तो हमारी भी नहीं है भाई, बंदे की भक्ति का लेवल देखो, क्या बात है। सो डिवोटीज आ गए इसके पास, कहते हैं ओ क्या हो गया भाई? कहते हैं यू नो आई एम सर्चिंग फॉर कृष्णा, आई डोंट नो वेयर इज माय कृष्णा। डिवोटी ने बोला वी नो वेयर इज कृष्णा, कम विद अस। यू नो या वी नो कृष्णा, कम। जिसको लेकर गए मंदिर में लेके गए, वहां थे राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण विग्रह थे। डिवोटी ने बोला हियर इज कृष्णा, दिस इज नॉट माय कृष्णा। देन आई वाज सर्चिंग फॉर अ डॉग, मैं कुत्ते को ढूंढ रहा था, कुत्ते का नाम है कृष्ण मूर्ति, मेरी गर्लफ्रेंड ने नाम रखा उसका कृष्ण मूर्ति। तो तू ऐसे कहते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुत्ते को ढूंढ रहा था। बट सी द मैजिक ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का ऐसा जादू, दैट ही मेट द डिवोटीज, ही टॉक्ड टू देम, क्लैरिफाइड हिज डाउट्स, नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड कमिंग टू टेंपल एंड ही बिकेम अ डिवोटी। So our Vedic culture is so powerful, is so amazing कि अगर कोई accidentally अगर नाम ले लेता है भगवान का, somehow this person becomes a devotee. ऐसे ही अर्जेंटीना में there was one competition, tattoo competition. So somebody had given Bhagavad Gita to somebody, his father basically. So he had Bhagavad Gita there. So he was searching for a book, tattoo किसका बनाऊं, tattoo किसका बनाऊं, टैटू किसका बनाऊं। तो उसको भगवद गीता हाथ आई, उसने खोले तो श्लोक थे उसके अंदर, कहता यार ये टैटू छपाता हूँ, ये बड़ा अजीब सा कुछ लिखा हुआ है, आई कैन मेक अ टैटू ऑफ इट। सो देन ही स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, सर्चिंग फॉर विच श्लोका टू बी रिटन एज टैटू। पर जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता चला गया, भूल गया कि उसको टैटू बनाना है, और बन गया कृष्ण का टट्टू। So even accidentally when somebody comes in touch with our Vedic culture, Indian culture, the culture of bhakti, devotion, that person becomes transformed. ऐसा होता है. In this way there are many stories. I'll stop here now. So I'll take few questions. तो इसलिए मैं हमारे आर्टिस्ट आपको यहाँ invite करूँगा. He can ask few questions and then we'll take some questions from you as well. हरे कृष्णा.
सो हमारे आरजे साहब कहाँ पर हैं जी? We kindly come to the stage. हमारे आरजे साहब अभी कहीं बिजी हो गए. Well, anyways, we'll take questions from all of you. Meanwhile, I would request you, आपके पास feedback form है, please fill in your feedback form so that we can improve our services to you. Because ISKCON keep performing this kind, organizing this kind of programs, ताकि हमारा जो youth जो कि भूत बनता जा रहा है because of media and Western culture, उसको वापस youth बनाया जा सके. We are trying to make these kind of festivals, organizing festivals all across India, all across the globe in fact. So आपको जो भी feedback form है please भर के दीजिए. जैसे feedback form आप हमको भर के देंगे, हम आपको प्रसाद का बॉक्स देंगे. ठीक है जी. और साथ ही हमारे बहुत ही बढ़िया कोर्स है JSD, उसके बारे में डिस्कवर द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. सो प्लीज काइंडली रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एज वेल. इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल बताया जाएगा. सो प्लीज डू रजिस्टर. इट्स अ फेथ बूस्टिंग कोर्स, very very important course where you can ask your questions, more questions, and free yourself from your doubts. Okay, so let's take few questions from you. Okay, let's start from there. Yes. प्रभु जी, सुनते हैं तो लगता है कि सोशल मीडिया से दूर रहें और अभी इतना वाइब्रेंट हो गए अंदर से, थोड़े ही समय बाद जाएंगे वापस से वही इंस्टा, फेसबुक एंड ऑल. तो हाउ कैन वी कंट्रोल ऑन दैट? ओके, अब फेसबुक जब से आया है तो फेसबुक आई रिसीव्ड वन मैसेज, इट मेंशन नोटिफिकेशन बार बार चेक करना बिल्कुल वैसा ही है मानो बच्चे की लंगोट चेक करना. माँ बच्चे की लंगोट चेक करती है ना, थोड़ी आवाज होती है, मतलब कुछ किया कि नहीं किया इसने, नहीं किया. फिर थोड़ी बार ओहो थोड़ा कर दिया इसने, गंदा आ गई. तो जब थोड़ी आवाज होती है तो माँ बार बार लंगोट खोल के देखती रहती है. इस तरह हमारा भी नोटिफिकेशन बजता रहता है, टिडिंग, कुछ आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया. तो बार बार नोटिफिकेशन चेक करना बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ का बच्चे की लंगोट को चेक करना. लेकिन ये सोशल मीडिया, माय गॉड, वेरी इंटॉक्सिकेटिंग. इनफैक्ट वन स्टैटिस्टिक्स मेंशंस दैट जब से ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, people spending time on social media has become quadrupled. यानी पहले 1.5 घंटा देखते थे, अभी 6 घंटा हर रोज people are spending on social media. जैसे शॉर्ट्स आए हैं, एक शॉर्ट 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आधा मिनट, देखते टाइम गेट्स वेस्टेड. तो क्या किया जाए? इसका बेस्ट सोल्यूशन है दैट यू कंट्रोल द माइंड बाय द पाथ ऑफ भक्ति. अब उसमें खैर थोड़ा समय लगेगा. मीनवाइल, in case you are really interested in saving your time and you want to read some book, you want to do something more like playing guitar or learning tabla, mridanga, kartal, you want to learn something and you want to have time and you are addicted to the mobile phone, अगर ऐसा केस है, so then मेरी request है कि have a mobile phone, smartphone but with no internet connection. अपने वोडाफोन वाले को बोले भाई साहब मेरा इंटरनेट इसमें से काट दो. थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा कष्ट होगा, जब आप ओला उबर बुक नहीं कर पाओगे या फिर जोमेटो पे कुछ बुक नहीं कर पाओगे, थोड़ी दिक्कत होगी आपको शुरू में. बट यू विल सेव सो मच ऑफ टाइम, माय गॉड. ओनली इन वाईफाई कनेक्शन यू कैन यूज द सोशल मीडिया थिंग. अदरवाइज व्हेन यू आर कैरिंग, इट इज जस्ट फोन, दैट्स इट. इट विल गिव यू सम इनकन्वीनियंस इन द बिगिनिंग, बट इन लॉन्ग रन यू विल बी हैप्पी. इन लॉन्ग रन यू विल बी रीडिंग अ बुक. So before your face there would be a book. So this is what you can do. You can also install some parental app कि आप जो कुछ भी सर्फिंग करें वो किसी की रिपोर्टिंग हो जाए अपने आप. ये देखिए भाई साहब कहाँ गए थे आज. रिपोर्टिंग होगी तो शर्म आ जाएगी. कहते हैं भैया जी आप क्या क्या देखते हो? हाँ, शेम. तो इसीलिए अपने मोबाइल फोन की को जो है कि रिपोर्टिंग करिए. इवन इन आवर ब्रह्मचारी आश्रम, हमारे यहाँ जितने भी फोन्स हैं उनमें सब में पेरेंटल ऐप है कि कोई व्यक्ति कहाँ जाता है उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है. और रिपोर्टिंग ऐसे होती है, हम स्क्रीन लगाते हैं, ऐसे स्क्रीन लगाते हैं और हम सब ब्रह्मचारी बैठते हैं एंड वी स्क्रॉल एवरीवन्स हिस्ट्री. मतलब बेइज्जती हो तो पूरी पब्लिक में अच्छे से बेइज्जती हो. सो दैट्स वाई गलती से भी, वैसे तो कोई जाता ही नहीं है, पर गलती से भी कोई नहीं आता, नहीं भाई कहीं क्लिक नहीं करना. मंथली जो है सारी हिस्ट्री सबकी स्क्रॉल की जाती है.
शेम शेम। तो इसलिए कोई नहीं जाता, तो इसलिए कोई जानबूझ, वैसे तो खैर वैसे नहीं जाते थे, गलती से भी अगर कोई जाना चाहे तो भी नहीं जाएगा, नो नो क्वेश्चन एट ऑल। सो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्राइवेसी को पब्लिक करना पड़ेगा। प्राइवेसी में हम सारे काम करते हैं, ऊपरटांग जगह जाना, ये देखना वो देखना। आप पता है दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सा है इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी? इंडिया। गूगल इज लाफिंग ऑन इंडियंस। क्यों? क्योंकि हमारी मिस इंडिया जब जाती है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, तो हमारी मिस इंडिया क्या बोलती है? आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर, प्योरिटी, रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू वेरी मच। तो अल्ले मेरा प्याला बच्चा, आओ तुम्हें तुम्हारे गूगल सर्च दिखाते हैं इंडियंस की तुम्हारे घर। सो गूगल इज लाफिंग ऑन इंडियंस की इंडियंस क्या क्या ढूंढते हैं। You know, 89% data of Indians is used for pornography. 89%, यानी 100 GB में से 89 GB is used for watching porn. बाकी 11 GB for Netflix, YouTube, फलां डिमका, that's 11 GB. 89 GB is for porn. Even USA is 85% and Brazil is 81%. हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया गंदगी में। अरे भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाएगी। तालियां नहीं बजा, नहीं 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 बाबा नहीं, ये इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं है कि हमने इन चीज़ों में अमेरिका को छोड़ा है। माय गॉड, अमेरिका इज 85%, ब्राजील इज 81%, वी आर 89%। माय गुडनेस, दिस इज नॉट गुडनेस। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, वी वुड बी फिनिश्ड। सो समवेयर वी आर टू वर्क ऑन इट। ठीक है जी, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम बालकनी? जी आवाज, हाँ ओके ऑलराइट। प्रभु जी, वी सी दैट अगर अपन कि हाँ ये MBBS है और ये झोला छाप है, पर स्पिरिचुअलिटी में जब अपन देखते हैं तो यहाँ कोई डिग्री नहीं होती, तो कैसे अपन देखें कि भैया ये बोनाफाइड है और ये बोगस पंडित साधु है? बिल्कुल सी बात है। कभी कभी लोग साधु साहब यही है, और ये मिलते हैं एक और पागल बिल्ले से जो किसी की बीवी को लेके भाग गया, अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, बने रहिए ब्रेक के बाद। और लोग चैनल बिल्कुल चेंज नहीं करते, कहते हैं गंदी खबर आ रही है, देखनी है, नेगेटिव खबर देखते हैं हम लोग। तो क्योंकि मीडिया ऐसे लोगों को दिखाता है साधुओं को, तो लगता है ओहो ये सब साधु लोग बदमाश है, पाखंडी कपटी लोग, कोई किसी बीवी लेके भाग गया, किसी बेटी लेके भाग गया, किसी पैसा लेके भाग गया, अरे छोड़ो यार। सो मीडिया ने क्योंकि ऐसी ही इमेज प्रोजेक्ट की है साधु संतों की, तो इसलिए मुझे लगता है सबके सब वही हैं भाई, सबके सब वही हैं। इन इंग्लिश देयर इज वन टर्म, उसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। किस किसने सुना इस टर्म को? लॉजिकल फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। इसका मतलब होता है यू जनरलाइज। कैसे? जैसे मैं इंदौर आऊं, मेरी को जेब काट ले, मैं बोलूं अरे इंदौर जेब कतरों का शहर है इंदौर। सो आई एम डूइंग लॉजिकल फैलेशियस स्टेटमेंट इन जनरलाइजेशन। अरे सब जनरली सब जेब कतरे ही हैं, जो ऊपर बैठे हैं जेब कतरे हैं, जो नीचे बैठे जेब कतरे हैं, जो यहाँ बैठे से जेब कतरे जेब कतरे जेब कतरे। इंदौर ना जेब कतरों का शहर है। दिस इज लॉजिकली फैलेशियस। इसी तरह से साधु संतों के समाज में भी कुछ बदमाश होते हैं, नो डाउट, लेकिन हम सोचे सारे ही बदमाश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको दवा दी लेकिन वो दवा आप पर काम नहीं की? किसके साथ कभी ऐसा हुआ है? ओके, अराउंड 40% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको दवा दी लेकिन वो दवा काम नहीं की। तो हम क्या करते हैं? अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं या डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं? हम अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई बागड़ बिल्ला रहा भी है, हाँ उसका बिल्कुल, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। तो इसलिए साधु संतों समाज में भी कुछ बदमाश होते हैं, नो डाउट, लेकिन हम सोचे सारे के सारे वही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो जो प्रभु का सच्चा भक्त है उसकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ही सिंपल है, अपने गुरु को समर्पित है, भगवान की वाणी को रिपीट करता है। ये नहीं बोलता मैं भगवान हूँ आपको भगवान बनाऊंगा, बल्कि बोलता मैं प्रभु का दास हूँ आपको प्रभु का दास बनाऊंगा। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना सकते हैं। अब बोले ऐसा कोई आपके पास सैंपल है? हमारे बीच में है महामन प्रभु जी। ये सारी क्वालिटीज महामन प्रभु जी के अंदर है। प्रभु जी सरल भी हैं, शास्त्रिक भी हैं, शराफत की मूर्ति है, सिंप्लिसिटी की मूर्ति है, वेरी काइंड, वेरी अफेक्शनेट, वेरी फादरली, एंड दैट्स व्हाई ही इज गुरु एज वेल। तो काफ़ी सारे डिवोटीज हैं जो कि प्रभु जी के डिसाइपल्स भी हैं। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू सी द कैरेक्टर ऑफ गुरु।
come and study Mahamantra book. So you can clearly see, oh, this is what it means to be a guru. Yes. In fact, in case you want to, मतलब आप किसी भी भक्त को देखें अगर आपने ISKCON में, they follow the teachings of Lord Krishna so religiously, with such purity. So you can come and yourself discover. पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें. As simple as that. ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हाँ किसी का सवाल है? हाँ जी, पीछे. Yes. ऐसे कार्यक्रम में हम आते हैं जो सांस्कृतिक रहते हैं हाँ या जी। धार्मिक रहते हैं, हाँ जी. तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ये अभी उम्र नहीं है, हमें ये कार्य 45-50 के बाद करना चाहिए, तो Yeah. उन लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस भक्ति के मार्ग पे, सदगत के मार्ग पे? वेरी गुड. यार जवानी कहाँ तू पंडित गिरी में कहाँ गंजों को सुनने जा रहा था यार, क्या करना है भाई यार. तो ऐसे आपके दोस्त बिल्कुल बोल सकते हैं, like that. But then we should see what are the words of some of the great spiritual leaders about Indian spirituality. Like Albert Einstein. Albert Einstein ने कहा, when I read the Bhagavad Gita, I could see that all the theories proposed by us, they appear to be so superfluous. किसने बोला ये? Albert Einstein ने बोला ये. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी, who is the country's prime minister, is a leader of not just India, but leader of entire world. He's a world leader now. He says भगवद गीता जैसा गिफ्ट मेरे पास नहीं है दुनिया को देने के लिए, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए. कौन बोल रहा है ये? नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जी ये. अच्छा, जितने ऐसे लोग हैं उनसे बोला, do you know Will Smith? Yes, of course. Will Smith, Hollywood superstar. Will Smith ने कहा, I am reading this Bhagavad Gita. I must say it is most relishable book I ever read in my life. किसने बोला ये? Will Smith, the Hollywood actor. He said that. ठीक है जी. अच्छा, और किस किस ने तारीफ की है हमारे ग्रंथों की, हमारी भगवद गीता की? आपने किस किस ने नाम सुना है? विक्रम साराभाई, the scientist, the father of space program in India. When he was sitting in Bhabha Atomic Research Center, तो वहाँ वो पढ़ रहे थे भगवद गीता. तो वहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला, अरे क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके यू आर रीडिंग भगवद गीता? आपको साइंस की किताब पढ़नी चाहिए क्या? मतलब क्या किताब पढ़ रहे हैं आप? सो विक्रम साराभाई कंटिन्यू टू रीड भगवद गीता. तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया, मुझसे सैल्यूट किया विक्रम साराभाई को. सो इस व्यक्ति ने उससे पूछा, कहता भाई आपने इनको सैल्यूट किया, कौन है? तो उस व्यक्ति ने बोला, अरे आपको पता नहीं कौन है? ही इज विक्रम साराभाई, ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया. ओह, आई एम सो सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर. पर उसने पूछा कि ना, यू आर विक्रम साराभाई, द ग्रेट साइंटिस्ट, एंड यू आर रीडिंग भगवद गीता एंड दैट टू इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. सो देन विक्रम साराभाई ने पता क्या बोला? विक्रम साराभाई ने बोला, विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई because Vikram Sarabhai is the student of Bhagavad Gita. These were the words of Vikram Sarabhai. बल्कि गुजरात के अंदर nowadays there is a textbook Bhagavad Gita. In UK की यूनिवर्सिटी है. In UK they are teaching Bhagavad Gita. In UK, इंडिया में पढ़ाएंगे तो वो लोग कहते हैं, come on, we are secular country. वहाँ चल रहा है. Yes. In the Department of Philosophy in Oxford University, सबसे ज्यादा जिस कोर्स की डिमांड है इज ऑन द वैदिक स्टडीज. कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे साइंटिस्ट कंसीडर कर रहे हैं संस्कृत को, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लेस नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी देयर इन संस्कृत. तो इसका मतलब साइंटिस्ट देहाती है, एल्बर्ट आइंस्टीन देहाती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी देहाती हैं, यूके की यूनिवर्सिटी देहाती है, और विक्रम साराभाई देहाती है, विल स्मिथ देहाती है. पढ़े लिखे तो ये निकले बस एक. आए क्या बात है. So Bhagavad Gita, the spiritual culture, is being appreciated all across the globe. In fact, what's her name? Julia Roberts. Julia Roberts, after reading Bhagavad Gita, she converted to Hinduism. कि बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, that I could not give you all the knowledge because currently you can't digest it. Where is the complete knowledge? Here is the complete knowledge. Julia Roberts, the famous Hollywood superstar, the beauty queen, changed into Hinduism after reading Bhagavad Gita. There is course on leadership and management in IIMS Ahmedabad, based on Bhagavad Gita. आप किसने विवेक बिंद्रा जी को सुना हुआ है? The #1 leadership CEO coach.
वो खुला खुला बोलते उनका वीडियो यूट्यूब में, अरे मैं तो चोर हूँ, अरे मैं तो चोरी करता हूँ, भगवद गीता से चोरी करता हूँ, आपको बता देता हूँ, श्रेय मुझे मिल जाता है, श्रेय तो गीता को जाना चाहिए। ऐसा कौन बोला? विवेक बिंद्रा, द नंबर 1 CEO बिजनेस कोच, बड़ा बिजनेस। तो ये लोग बोल रहे हैं हमारे वैदिक कल्चर के बारे में, ये बोल रहे हैं। अब इन टल्लूदीन लोगों की सुने या इन महान आत्माओं की सक्सेसफुल लोगों की सुने, चॉइस इज योर्स। ठीक है जी, ओके। और कोई सवाल किसी का? इस तरफ से जी प्रभु जी इधर, प्रभु जी आपके राइट साइड, आपके राइट साइड। उनके पास एकदम नया था और वो उसको ज्ञान को प्राप्त करके एकदम उसको पा गए, पर यहाँ पर तो लोग भगवान का नाम लेकर के क्या बोलते हैं, ड्रग्स लेते हैं या भगवान का नाम लेकर के दारू शराब पीते हैं। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि हम इस्कॉन वाले या फिर हम लोग कैसे समाज के उस तबके को कैसे क्या बोलते हैं प्रभु से जोड़ सके, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो, इन विषयों पर भी और इन तबकों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आनंद तो हर किसी को मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल सी बात है। साक्षी ऐसा हुआ भी था, देवानंद जो इस्कॉन का पार्ट नहीं थे बट दे वर हिप्पीज और वो गाना गाया करते थे, तो फिर देन ही केम अप विद दिस गाना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। पर धीरे धीरे क्या हुआ, दम मारो दम का दम निकल गया, सिर्फ हरे कृष्णा रह गया। राइट, सेम इज व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस आल्सो। हम सोचते हैं इधर उधर नशे लगे हों, लेकिन भगवान का नाम लेते रहते हैं, उसी से ही हमारा कल्याण हो जाता है। आई गिव वन केस स्टडी। वहां पर there was one person, he was undertaker, you know undertaker, एक तो रेसलर हुआ है अंडरटेकर, अब काफी बूढ़े हो चुके हैं भाई साहब। अंडरटेकर का काम क्या होता है, जब कोई मर जाता है ना, उसके शरीर से सारा खून निकाल देते हैं, या सॉरी खून जो रहता है उसको जेल में कन्वर्ट करते हैं, और क्योंकि लोग मरते हैं तो बड़े दुख में मरते हैं, तो उसके मुंह को सिल कर